यस सर, क्लासेस अच्छा हो रहा है सर। क्लासेस अच्छा हो रहा है, ठीक है। यस सर, सर इस वीक में हम लोग 15 लेक्चर हुआ है सर, 15 लेक्चर्स। अच्छा, 15 लेक्चर्स आपके हो गए, वेरी गुड सर इस वीक में सर। यस, गुड, द मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, सो यस सर। गोइंग टू 14। दोस्तों से बात होती है आपस में? जी सर। यस यस सर। सर भी ये एकेडमिक्स का भी डिस्कस किया करो, तो आज का लेक्चर क्या है, कब कब है, कुछ थोड़ा इस बारे में। और कुछ रिसोर्सेज हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन है, RCVS। यस सर, इंग्लैंड लंदन सर। वेबसाइट पे भी लगाया हुआ है, उसमें बहुत सारा मटेरियल है। और ऑनलाइन कोर्सेज हैं कई, वो भी मैंने रिकमेंड किए थे, और कुछ बाकी फैकल्टी भी रिकमेंड कर रही है, उनको भी देखेंगे। ओके सर। क्योंकि इसको वी आर नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग द ऑनलाइन पोटेंशियल ऑफ दिस ऑनलाइन लर्निंग। इसको और अभी तो मजबूरी में सब लोग आगे बढ़े हैं, जिस समय ये प्रेशर बना या ऐसा सिचुएशन हुआ। We should be doing this as a supplementary and a complementary activity along with our regular classroom work. तो सर राहुल जी शुरू करना चाहेंगे? हाँ सर, So I hand over to you. First of all, I welcome to Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Rahul Srivastava, and my dear students. Today with us, Dr. Rahul Srivastava. He is basically a veterinarian. He did MBSc from IVRI and MBA in Agri Science. He is a Vice President in Hester Bioscience Limited. He is an leading animal health care company and second in vaccine production in India. So I would like to invite Dr. Rahul Srivastava for a lecture about the career of veterinary sciences. Thank you, sir. Thank you very much, sir. My voice is clear to everyone, all the participants? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, first of all, thank you very much, sir, VC sir, especially to encourage me to involve with the students. And I think BASU is the only university where we are having this kind of association. And it's not only a kind of lecture, but it's a long-term relationship. We are like Hester and BASU, we are working together to assist the scholars at BASU on various fronts. So earlier also we did something, but under this lockdown situation, I thought why not to continue those activities through our Empowering Vet campaign. So thank you, sir, for this motivation, and with your inspiration only we are continuing. And believe me, this is really a very inspiring thing for me also, because I have tried many other colleges, but this kind of response I haven't received. So it's a good thing. At least in Bihar we are having this kind of proactiveness. And second, Ajit sir, who is managing the entire show. So thank you, sir, for you also, and JK Prashad sir also. And today actually for this lecture, yesterday I asked Ajit sir, if students are coming, why not to talk on specific points. So I am really happy. Who was the person? Akash, a student who compiled the information, like the fourth year student, in which area they are interested. So I categorize 3 areas. So first thing is entrepreneurship development, and where many students are interested, like Ashish, Ajit, Jitendra, Mohit, Bipin, Gyan, Pranav, Akash, Aditya, Satya, and Arjun. So they are interested in some or other different kind of entrepreneurial venture. At the same time, there are some students like Divya, Manju, Prachand, Namrata, and Jitendra. They are interested in, I think, in research domain in different dimensions. And the third component came into the picture, Rupam, Sandeep, Shivani, and Rahul. So they are interested in corporate job. So this is really interesting thing to note. And
to have this kind of vision at 4th year level, so that you can prepare yourself after completion of your UG program. And this is very much needed, especially in Hindi speaking belt, if you talk about northern and eastern part, because we are a little bit lagging behind in the, like, wherever the veterinarians are contributing, so we are struggling. So why I'm saying this thing, because like, if you are prepared, if you are competent enough, so you can perform your duties better wherever you will be. You may be in field, you may be in academics, you may be in research or in corporate job, or you will start your own business. So better to prepare than struggle after. So that's why I think today's discussion, we will focus on 3 important areas. 1, business plan development for entrepreneurship. Second, for the this corporate guys, how can we develop our own CV? And the third, for the research, how can we do short-term research? Because like, whenever we think for research, immediately we thought 2 things, either scientist or lab. But that is not a case. But what I feel, it's my personal opinion, and I may be wrong, I feel the best researcher is a kid of 1 year age. क्योंकि वो जो बच्चा होता है ना, वो सब चीज सीखना चाहता है। वो जिस तरीके से वो देखता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो हर चीज को देखता है कि कैसे खड़े होना है। मतलब जब वो चलना भी नहीं जानता तो भी वो सबको नोटिस करता है, कैसे बात करना, ताली कैसे बजानी है, खुशी में कैसे वो करना है। हम लोग इनहेरेंट, एवरीवन इज रिसर्चर, बट जैसे जैसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं, एकेडमिक में जाते हैं, और फिर हम अपना जो सबके अंदर का जो रिसर्च माइंडसेट है, वो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और अंत में हम लोग इस लेवल पे आते हैं कि रिसर्च मतलब हमें हमेशा यही लगता है कि सोफिस्टिकेटेड लैब हो और आपके नाम के साथ डिजिग्नेशन साइंटिस्ट का लगा हो। तो मुझे लगता है कि वो चीज थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप एकेडमिक में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे हो, रिसर्च कंपोनेंट, रिसर्च मीन्स कुछ नया सोचना, कुछ अपने जो नॉलेज है उसमें बढ़ाना, और उसके लिए प्लान तरीके से स्टडी करना, यही तो रिसर्च है। रिसर्च का मतलब ये नहीं हुआ कि टोल लाइक रिसेप्टर की बात हो या वायरस के कैप्सिड प्रोटीन की बात हो तभी आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में रिसर्च होती है, सोशल रिसर्च होती है। जैसे मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, वहाँ पे जो लीची का आउटब्रेक हुआ तो उसमें कई तरीके की रिसर्चेस सामने आई। कोई जरूरी नहीं है हर चीज लैब से ही निकल के आएगा, सोशल साइंस में भी रिसर्च होती है, जब मार्केट में आप जाते हैं तो वहां पे भी रिसर्च होती है। तो रिसर्च का मतलब थोड़ा सा आपको सबमिशन यही रहेगा कि जब भी आप कभी भी सोचिए कोई भी चीज, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज है कोई भी काम करने के लिए। कई बार होता है हमारा मन बड़ा एकेडमिक में होता है, बट एकेडमिक में हम नहीं जाते हैं और रिसर्च में रहते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आपका जो एकेडमिक्स की या जो पढ़ाने की, कन्विंस करने की स्किल थी वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप रिसर्च में कर सकते हैं, क्योंकि कितने अच्छे साइंटिस्टों को मैंने देखा है जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर से एक्सटेंशन की फील्ड में। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सटेंशन से ही उन्होंने पीएचडी की हुई हो सकता है वायरोलॉजी में पीएचडी की है, बट वो काम एक्सटेंशन के तरीके से इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करते हैं। तो आपके अगल बगल कई तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको थोड़ा ओपन होना है। इस नोट के साथ मैं इस चीजों को शुरू करता हूँ। तो 3 मुख्य मुद्दों पे बात होगी कि बिजनेस प्लान कैसे बनाए, दूसरा सीवी में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, और तीसरा अगर हमें रिसर्च के लिए करना है तो शॉर्ट टर्म रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट की बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पिछली बार का जो हम लोग का डिस्कशन था वो 40 मिनट पे हम लोग स्ट्रगल कर गए थे और एक मोमेंटम टूट जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा पहले आप लोगों को बताने के लिए, और स्टूडेंट से खास एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो आपके पास पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, डायरी हो ना हो, कहीं कुछ भी हो नोट तुरंत कर लेना, पूछना बाद में आप। सर प्लीज। मैं अजीत के लिए कहना चाह रहा था कि जो गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जो मेरा आईडी है और पासवर्ड है, लॉगिन आईडी, वो यूज करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन है उसका, वो 40 मिनट में ब्रेक नहीं होगा बीच में। ओके सर। ठीक है, तो आगे से दीपक के पास रहता है वो, तो दीपक को इसलिए इन्वॉल्व करना जरूरी है। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर करेंगे तो वी विल गो फॉर द वन वेयर वी हैव फुल सब्सक्रिप्शन। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। ओके सर। तो बात करते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्वेरीज आई हैं और सबसे अच्छा मुझे लगा कि 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने अगर इंटरेस्ट लिया है एंटरप्रेन्योरशिप में तो ये आज नहीं कल करेंगे नहीं करेंगे, पर माइंड तो इनका हमेशा रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान को थोड़ा सा, बाकी जो आप गूगल में डाल दीजिए बिजनेस प्लान, तो आपको अनंत इसको वो मिल जाएंगे पेजेस जहाँ पे आपको लिखा रहेगा बिजनेस प्लान कैसे बनाए, 2 मिनट में कैसे बनाए, 2 घंटे में कैसे बनाए, बुक्स रहेंगी, सब कुछ रहेगा। बट जो बेसिक चीजें उनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ प्रोफेशनल, जैसे जो वेटनरी के स्टूडेंट या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बिजनेस प्लान बनाने में
वो अपने से शुरू करते हैं कि उनके पास क्या है, और फिर वो मार्केट में जाते हैं। जैसे आप वेटनेरियन है तो आपका माइंड पहले से शुरू होगा कि मुझे पहले बकरी पालनी है या गोट पालना है, मिल्क प्रोड्यूस करना है, मीट प्रोड्यूस करना है। बजाय अपनी ओर से शुरू करने के आप कस्टमर की ओर से शुरू करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि वही एकदम सत्य है, लेकिन मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ कि जहां सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब आप कस्टमर को समझते हैं तो होता क्या है कि आप वही चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि आप बेचने में आसानी होगी, जिसका ट्रांसपोर्टेशन आप आसानी से कर लेंगे, और आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जब आप अपने से शुरू करते हैं तो हर बार मैंने कई बार मतलब ज्यादातर देखा है कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं। जैसे आपको पिछली वीडियो में एक बताया था कि गोट फार्मिंग के ऊपर एक सज्जन ने इन्वेस्ट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में स्ट्रगल कर गए क्योंकि उनको बाद का पता नहीं था। तो ये हमेशा प्रोडक्शन करके ही बेचने वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है जो भी बिजनेस में आता है। बिजनेस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बनाएं और हर चीज आप ही करें। हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट को आप दूसरे पार्टनर के साथ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया था, ओला उबर चलती है, उसके बिजनेस मॉडल में पूरे दुनिया के सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन इन लोगों के पास रहता है, लेकिन इनकी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। तो आज का जो समय है उसमें आपको मोल्ड होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज काफी इवॉल्व हो चुकी हैं। और ये पहले के जैसा नहीं है कि जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि जब भी अगर डेयरी की बात शुरू होते थे तो आदमी पहले गाय ढूंढने निकल जाता था कि पहले गाय ढूंढेंगे, अच्छी नस्ल की गाय हो, फिर उससे अच्छा प्रोडक्शन हो, फिर जब दूध होगा तब हम बेचेंगे। ऐसा नहीं है, आज के समय में हमें कस्टमर से अगर शुरू करना है तो हो सकता है कस्टमर को ऑर्गेनिक मिल चाहिए था। आपके पास कोई ऐसा ट्राइबल इलाका, जैसे हमारा एक डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे लखीमपुर खीरी, ये उत्तर प्रदेश में एक इलाका है जहाँ पे थोड़ा सा ट्राइबल इलाका लगता है, वहां पे तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक मिल्क हो रहा है। तो अगर कोई वहां से ऑर्गेनिक मिल्क की मार्केटिंग करता है तो उसको तो कोई जरूरी नहीं है ना कि आपको होल्स्टीन फ्रीजियन लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के सार ये है कि जब हम अपने से शुरू करते हैं तो कई बार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में फंसते हैं। उससे अच्छा हम कस्टमर से शुरू करें। और कस्टमर को जब हम शुरू करते हैं तो कस्टमर को आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि आप किसके लिए काम करने जा रहे हैं। क्या वो एलीट क्लास है, जैसे अगर आप पटना की बात कर रहे हैं तो क्या पटना के जो हाईली एफ्लुएंट लोग, जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, क्या वो आपके कस्टमर हैं, या मिडिल क्लास आपका कस्टमर है, या फिर स्मॉल होल्डर जो लोग हैं वो हैं आपके कस्टमर। तो अब बात आती है कि अगर कस्टमर की बात है तो आपको प्रोडक्ट की बात होगी कि क्या किस तरीके का प्रोडक्ट आपको ले आना है या सर्विसेज ले आनी। कोई जरूरी नहीं कि आप हर प्रोडक्ट में ही बिजनेस प्लान रहे, क्योंकि कई एडवाइजरी सर्विसेज भी चल रही है। तो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको देखना पड़ेगा। और अब देखना क्या है आपको कि बेसिकली आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर किसी कंपनी की बात करते हैं, आसपास आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपके पास प्रोडक्ट है, बट क्या, जैसे अभी हम जूम की बात कर रहे हैं तो जूम के क्या वैल्यू है। आज हम इतने लोग एक साथ बात कर रहे हैं, आज से जब तक जूम नहीं था तब तक इमेजिन नहीं करते थे कि हम लोग इतने लोग बात कर पाएंगे। तो इसकी क्या यूटिलिटी है। शुरुआत तो ऐसे हुआ होगा, जैसे फेसबुक की कहानी अगर आपको पता होगी, शुरुआत तो कॉलेज में फ्रेंड्स से शुरू हुआ था कि एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, और आज ये शेप लेके गया। तो कहीं ना कहीं हमें एक लॉन्ग टर्म वैल्यू देखनी पड़ेगी कि हम क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब वेटनरी में आते हैं, वेटनरी में हम क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गोबर ऐसे फेंका रहता है गाँव में, वही उसका वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसमें और फर्दर रिफाइनमेंट करते हैं तो वो पता लगा मॉल में बिकता है 100 रुपए का। तो पॉइंट क्या है कि जो इनपुट है वो तो सबको पता है ना, बट आपका आइडिया क्या है बिजनेस का, जिससे कि वो इनपुट कैसे एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है कस्टमर के लिए। अब अगर आप मान के चलिए कि आपके यहाँ पटना में भी हाई राइज सोसाइटी हो रही है, या बिहार के कुछ जिलों में डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, तो वहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज में कई अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होंगी लाइफ स्टॉक रिलेटेड। क्या उनको आप सर्व करना चाह रहे हैं विद योर इनपुट कि ऑर्गेनिक मिल्क है, या रिफाइंड वर्मी कंपोस्ट है, या केज फ्री है। कई तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। या आपका डेयरी फार्मर कस्टमर है कि आप उसको एडवाइजरी सर्विसेज देना चाहते हैं, क्योंकि फार्मर के पास जो अभी फार्मिंग में करने जा रहा है, या लोग बिजनेस करना, पोल्ट्री फार्मिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। पोल्ट्री एक ऐसा डोमेन है जो अपने आप को कॉमर्शियल लेके कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, जहाँ पे कि पोल्ट्री फार्मर एक फार्मर ना होके एक अच्छा बिजनेसमैन हो जाता है। उनको राय चाहिए होती है, उनको कितने वेटनेरियन राय देते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन आपकी बुक से सॉल्व नहीं होते हैं, वो एक्सपीरियंस से होते हैं। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा।
पोल्ट्री फार्मर्स के जो सवाल होते हैं उसको आपको डील करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो एक माइंडसेट आप लोगों का रहता है कि हम वेटनरी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट छूट जाता है, जैसे मक्का कब अवेलेबल होगा नहीं होगा, सोयाबीन की क्या सिचुएशन है, मार्केट ट्रेंड क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कि आपको कस्टमर आपको फिक्स करना है, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं आपको वो फिक्स करना है। फिर आपको बात करनी है कि जो भी आप ये वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। भाई आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हैं वो कैसे पहुंचेगा कैसे कस्टमर तक, आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि आपका जैसे दूध के मामले में लेके चलते हैं, पहले ये होता था कि ग्वाला दूध लेता था और ले जाके देता था अपने कस्टमर को, बाद में ये हुआ कि उसने मिल्क कलेक्शन सेंटर पे दे दिया या कोई दूसरा ट्रेडर आ गया उसने मिल्क कलेक्ट कर लिया और उसने जाके दे दिया। तीसरी सिचुएशन ये हुई कि मिल्क को प्रोसेस किया और किसी दूसरी कंपनी ने ले लिया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज की हालत ये है कि दिल्ली एनसीआर में या जितने भी बड़े शहर हैं आप वहां पे देख लीजिए, मिल्क को प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव होता है और नीचे लिखते हैं लोग इनिशिएटिव बाय IM एलुमनाई, जिसे कंट्री वेबसाइट पे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपके पास स्कोप बहुत है, मिल्क वही है, कंज्यूमर वही है, फार्मर वही है, आइडियाज ने सारा का सारा चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को फिक्स करना पड़ेगा कि कस्टमर कौन है, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन आप ले आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट अपने आइडिया के साथ, कैसे आप कस्टमर तक पहुंच रहे हैं और कैसे ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अभी तक जो हमने बात की, अगर आप इसको एक जगह पे लिखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कस्टमर फिक्स हो गया, आपका प्रोडक्ट फिक्स हो गया, चैनल फिक्स हो गया, और आप कैसे उस कस्टमर को रिलेशन मेंटेन करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम एक बार जैसे कई बार मार्केट में होता है कि कस्टमर को आपको रिटेन करना पड़ता है। इन सारी चीजों को एक जगह लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। सबसे बड़ी गलती जो वेटरनरी में होती है कि हम लोग अपनी ओर से तो शुरू करते हैं कि हम इतना पैसा लगाएंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जब पैसे की बात आती है कितना पैसा हमें मिलेगा, वहां पे हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और अगर नहीं है तो कब कब मिलता रहेगा। तो इन चीजों को हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। और अब आते हैं दूसरी साइड पे कि खर्चा कहाँ होगा। अभी तक तो हमने बात की रेवेन्यू की, अभी खर्च कहाँ होगा। इन सारा काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज, क्या इनपुट रहेगा, क्या क्या एक्टिविटीज आप करेंगे, और वो एक्टिविटीज जब करेंगे तो क्या क्या आपके पास कौन कौन से पार्टनर्स होंगे जिसे प्रोवाइड करने के लिए इन वैल्यूज को कस्टमर तक। इन सब चीजों को जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि खर्चा कहाँ कहाँ होगा। क्योंकि कभी भी हमने कोई जितना भी इंट्रोडक्शन किया वेटनरी में एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं दो चीजों में। एक तो हम पहले बायस्ड रहते हैं अपने लिए कि हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो बिक जाएगा, क्योंकि वो हमें कॉन्फिडेंस है, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और दूसरा कंफ्यूजन होता है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। जो पैसे की हम एजम्पशन लगाते हैं वो एकदम हाई फाई लगाते हैं कि अरे वो हमको इतने में भेज देंगे, इतने में हो जाएगा। बट ये नहीं सोचते कि एज ए कस्टमर आप अपने आप को कस्टमर की जगह पे रखिए और अपना ही प्रोडक्ट अपने आप को बेचने की सोचिए कि आप वाकई उतना पैसा दे देंगे जितना आप एज्यूम कर रहे हैं। वहां पे हमें लगता है कि ये कॉस्ट का जो एंगल है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और थोड़ा सा हिस्टोरिकली जो हम लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स में, जो हमने पढ़ा है अपने बुक्स में, वो भी बड़ा पुराने समय का। इवन मैंने नाबार्ड का भी देखा तो जो उसमें सिस्टम एंड जो वेरिएबल कॉस्ट का सिस्टम है उस तरीके से भी दुनिया नहीं चलती। अभी काफी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो ये इन सारी चीजों को अगर आप एक पेज पे लिखेंगे तो आपका अपने आप बिजनेस प्लान बन जाएगा। अजीत सर सारे इसके बाद चला गया ना, चीटिंग करती है वो आराम से बहुत ही हेलो सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब था ये जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ लगेगा, अगर आप इन चीजों को बारीकी से समझेंगे तो अपने आप काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसी को बिजनेस प्लान कहा जाएगा, क्योंकि बिजनेस प्लान वो नहीं होता है कि एक फिक्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आप उसके ऊपर चलेंगे और आप बिजनेस कर ले जाएंगे। क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, सब चीजें बदलती हैं, आपके सारे फैक्टर तुरंत बदल जाएंगे। अभी कोविड की सिचुएशन में बड़े से बड़े कंपनियों से लेके छोटे से छोटा बिजनेसमैन सब अफेक्टेड है। तो सारी चीजें सब्जेक्ट टू चेंज होती हैं बिजनेस में। बस ये होता है कि बिजनेस प्लान आपको एक फ्रेमवर्क देता है और ये बहुत ही डायनेमिक डॉक्यूमेंट होता है और आपको देखते रहना पड़ेगा कि हमें क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सिर्फ फ्रेमवर्क देता है।
आप ये उस गलतफहमी में मत पड़िए कि बिजनेस प्लान जब तक नहीं बनेगा तब तक बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस आप देख रहे हैं वो तब नहीं खड़े हुए जब उनके पास बिजनेस प्लान बना, क्योंकि थॉट प्रोसेस होगा उसको आप रिफाइन कीजिए। हाँ, आप कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर को ध्यान से समझिए, काम धीरे धीरे शुरू कीजिए, ना कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, और धीरे धीरे लर्न करते जाएंगे तो ग्रेजुअली ये बढ़ा होगा। और ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि दौड़े और अपना मंजिल पे पहुंच गए, ये मैराथन है। किसी को भी बिजनेस करना है तो वो ये सोच के ना आए कि वो 6 महीने साल एक दो साल करेगा और फिर उसके बाद कम से कम मान के चलिए 2 से 3 साल आप स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद ही आपको कोई बेनिफिट होगा। तो अगर पेशेंस है तभी आइए, ये सोच के मत आइएगा कि 6 महीने में हम राजा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरा निवेदन है आशीष, अजीत, जितेंद्र, मोहित, विपिन, ज्ञान, प्रणव, आकाश, आदित्य, सत्य और अर्जुन को। आपके मैं देख रहा था किसी ने लिखा है कि किसी को गोट फार्म खोलना है, किसी को इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है, किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है। ये सब का समय अभी नहीं है कि आप कोई चीज को ऐसे डिफाइन करें कि हमें डेयरी फार्मिंग करनी है, क्योंकि मिल्क का बिजनेस करने के लिए आपको गाय रखने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे अच्छे मिल्क के ब्रांड हैं जिनके पास खुद का डेयरी फार्म नहीं है। और इसका ये कहते वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाय पालिए नहीं, लेकिन जिसको अगर करना है तो आपको समझना पड़ेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब क्या। इंटीग्रेटेड फार्मिंग से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजों के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल कई यूनिवर्सिटीज में बने हुए हैं। एक मैंने रांची में भी देखा था 2012 के आसपास। उस समय ये था कि डॉक्टर एन सिंह सर हुआ करते थे, तो उन्होंने हर्बल गार्डन बनाया था। तो उस समय वो चीज बड़ी अच्छी थी कि कम जगह पे आपने कुछ ऐसी हर्बल बना दी और जिसको कि आपने परचेज करके कर दिया। बट एनीवेज इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरे ज्यादा समझ में नहीं आया कि वो बिजनेस मॉडल के रूप में कैसे होगा। बट यू आर ऑल आर फ्री टू डिस्कस विद मी ऑन दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो भी आपका इनिशिएटिव है। मेरा आपको सब्मिशन ये था, बेसिक सब जगह एक ही होती है, वो नहीं बदलती है। आपको 2-3 जो क्वेश्चन है उसके ऊपर एकदम आपको हार्ड रहना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, रिस्क सबसे ज्यादा आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि पैसा आपका, टाइम आपका, इज्जत आपकी है। आपको ही लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजों में तो आप फिर भी समय बाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप रिसर्च में, एकेडमिक में है या कहीं जॉब में है तो आपके पास फिर भी स्कोप रहता है। बट बिजनेस में कोई भी स्कोप नहीं है आपके फेल्योर होने का। आप हमेशा सीखते रहेंगे और चांसेस हमेशा आपके साथ स्ट्रगल करने के बने रहेंगे। तो आपको जितना ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं अपने आप को कि भाई मैं क्या सर्विस या प्रोडक्ट दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, उसके बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा और ये कब तक मिलता रहेगा। ये जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसको आप नहीं सॉल्व करते हैं तो चाहे जो आप करें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिन लोगों को कॉर्पोरेट में जाना है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, कॉर्पोरेट को हमें लगता है कि एक कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे माइंड में बना हुआ क्या है कि हम लोग हमेशा एमआर से कंफ्यूज होते हैं कि वो झोला लेके दवाई बेचने आएगा या हमें कन्विंस करने आएगा। वो एक कंपोनेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर का। कॉर्पोरेट में सेल्स है, मार्केटिंग है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है, कई अलग अलग एरिया, इनोवेशन है कई चीजों में। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एज ए वेटनरियन। आपके इनसाइट्स अलग हो सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, चाहे एग्रीकल्चर क्यों, चाहे डेयरी क्यों, चाहे वेटनरी क्यों। आपको वो चीजों को सोचना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो क्या स्किल्स चाहिए होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, उनको थोड़ा सा बताने से पहले मैं सोच रहा था आपको सीवी बनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, जिसको भी है अभी सीवी बनाए। और उसका एक खास पर्पज था, क्योंकि सीवी जब आप बनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप बेसिकली हैं क्या। क्योंकि वैसे तो आपको समझ में नहीं आता, बट सीवी में जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, कि एकेडमिक में जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अभी आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपने स्किल्स, अपने स्ट्रेंथ के बारे में जब सोचेंगे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में सोचेंगे, तब आपको समझ में आता है अपने आप से। तब इंटरव्यू करना होता है, क्योंकि बाकी दूसरा इंटरव्यू करे उससे पहले आपका अपना इंटरव्यू होता है। तो मैं कुछ चीजें मैं सोच रहा था सीवी रिलेटेड बताने के लिए। एक चीज जो सबसे खास है कि हम लोग सीवी के मामले में सबसे ज्यादा कैजुअल अप्रोच उठाते हैं, किसी सीनियर की या किसी और की सीवी, या नेट पे गए, गूगल में मारा, सीवी एक फॉर्मेट आया, उसमें बस अपना नाम, गांव सब चेंज किया और भेज दिया। क्या आपको लगता है कि
150 लोगों की ऐसे कागज पड़े रहेंगे तो कोई भी आदमी आपकी ही सीवी उठाएगा, और क्यों उठाएगा? फिर एक जगह मैंने बात किया था तो उसमें लोगों ने कहा कि सीवी का मतलब होता है कि अपने आप को आप एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम इस जॉब के लिए रिस्पेक्टेड, मतलब काबिल हैं, या सिर्फ अपने बारे में। ऐसा भी नहीं है। तो सीवी बेसिकली है क्या? सीवी आपका जो करिकुलम वेटे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपके मिलने से पहले आपके बारे में एक जानकारी एक पेपर पे जाती है, लेकिन जिसको जा रही है वो जानकारी, उसने क्या मांगा है आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा। अगर मानिए कहीं इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो वहां पे आप तो नहीं अप्लाई करेंगे ना किसी चीज के लिए। तो सीवी हमेशा लिंक होनी चाहिए जॉब से। सीवी ऐसा नहीं है ना कि हम किसी को सिर्फ अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। तो इन दोनों चीजों को जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे तब तक उस सीवी का कोई फायदा नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, सीवी को अलग बनाते हैं, जॉब अलग सोचते हैं, और एक ही सीवी को हम हर जगह भेजते हैं। चाहे वो कंपनी एनिमल न्यूट्रिशन की थी, चाहे फार्मा की थी, चाहे कहीं की थी, हम एक ही सीवी बना ली है और उसी को हर जगह भेजना शुरू कर दिए। चाहे जिस कंपनी, वैक्सीन की कंपनी है, मेडिसिन की कंपनी है, न्यूट्रिशन कंपनी है, इवन जेनेटिक्स की कंपनी, हम वही सीवी भेजते हैं और हमें लगता है कि हमारी तो बड़ी अच्छी सीवी बनी है। तो सबसे पहली बड़ी गलती, सीवी अकेला डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सीवी को हमेशा जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मर्ज करना होता है। तो जब भी आप सीवी बनाएंगे, आपको एक सीवी नहीं बनानी है, आप एक सीवी अपने लिए बनाएंगे, बट जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं, आपको सीवी मॉडिफाई करनी है। और मॉडिफाई क्यों करनी है? आपको जॉब के हिसाब से मॉडिफाई करनी है। अगर आप फार्मा की कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना उस पोर्शन को उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि यू आर मोर एफिशिएंट इन दोज फार्मास्यूटिकल कोर्सेज, जो कि क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम आपको वहां हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई पिछले 5 साल में, 5.5 साल में आपने कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया ऑन क्लिनिकल साइड। आप जेनेटिक्स की कंपनी में जैसे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उधर बताना पड़ेगा कि यू आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड ब्रीडिंग साइड। और अगर आप प्लेन बीबीएससी हैं तो आपको तो कम से कम ये फोकस करना पड़ेगा ना कि आपने इसमें कुछ काम किया था। तो इसीलिए आपकी जो सीवी है वो दो चीजों की है। आपका खुद का डॉक्यूमेंट जॉब के साथ मर्ज होना चाहिए। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, सीवी बड़ी फैशनेबल टाइप की नहीं होनी चाहिए। सिंपल फॉन्ट होना चाहिए, उसका लेआउट होना चाहिए। और एक तो मैंने देखा है कि सीवी भेजते वक्त हम लोग न कम्युनिकेट करते हैं, ना स्पेलिंग चेक करते हैं। कई लोग अपना नाम की स्पेलिंग छोड़ के बाकी और कई जगह इतने ब्लंडर होते हैं कि कॉलेज की, यूनिवर्सिटी का अलग लिख देते हैं, वेटनरी की स्पेलिंग अलग लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग अलग लिख देते हैं। इवन उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स काफी होती है। तो स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए सीवी में। एक जो इंटरेस्टिंग बात आती है, क्योंकि हम सबकी कॉपी कर रहे होते हैं सीवी, तो उसमें एक जो सबसे पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव का, तो वो ऐसा हाई फाई होता है जो किसी को समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो बेसिकली वो कंपोनेंट होता है, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें बड़ा एक क्रेज होता है कि बड़े हाई फाई इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जमेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको पढ़ते ही जितना उसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं, जो भी सीवी देखता है उठा के साइड में रख लेता है। इसलिए हमें थोड़ा सा फोकस ये करना पड़ेगा कि जो भी सीवी बनाएं आप उसको सिंपल रखिए और जेन्युइन रखिए। जो आप कहना चाहते हैं उसको ही कहिए, दूसरे से इन्फ्लुएंस मत होइए कि उसने बड़े भारी भारी शब्द लिखे थे तो हम भी वही रखेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला कंपोनेंट सही होना चाहिए। और सीवी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। एक पेज बहुत आइडियल है, एक पेज में सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। और जब एक पेज में इंफॉर्मेशन आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में सब कुछ भर दें। जैसे कई लोग हैं मैराइटल स्टेटस लिखते हैं। अरे भाई, मैराइटल स्टेटस, नेशनैलिटीज, ये सब लिखने की कहाँ जरूरत है? और कॉन्टेक्ट डिटेल में पूरा घर का पता लिख देते हैं, जैसे लगता है कि किसी को आना है घर पे। अरे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ईमेल पे आपके कम्युनिकेशन होगा ना। इसलिए आप अपनी जो चीजें हैं, अपनी सीवी को आप देखिए, अगर आपके पास है हाथ में, कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, कितनी अननेसेसरी की चीजें, उनको हटाने की जरूरत है। आप अपना नाम रखिए अच्छे से, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए। इससे ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए किसी को आपको कांटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद अपने आप डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर नजर डालिए कि आपने क्या क्या रखा हुआ है। क्योंकि सब लोग यूजी में रहेंगे, आपका जो पर्सनल, जो पहला आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जो पहले की 3-4 लाइनें, उसमें क्या लिखा हुआ है आपने। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग शुरू करते हैं हाई स्कूल और 9 से, उससे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बीबीएससी किया इसका मतलब आपने हाई स्कूल इंटर किया होगा। ज्यादा 12th के बारे में डाल सकते हैं अभी आपके लेवल पे, अदरवाइज आप यूजी की क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है उसमें डालिए। लेकिन जब भी हम क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो वहां पे एक अन्याय करते हैं कि हम सिर्फ नाम लिख देते हैं बीबीएससी इंडिया।
बट उसमें आपके पास मौका है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जो मैं पहले कह रहा था कि अगर आप मेडिसिन की कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप बीवीएससी एंड ईयर जब लिखेंगे, नीचे आप अचीवमेंट में सिर्फ मेडिसिन की चीजों को फोकस कीजिए कि आपने काफी क्लिनिक्स अटेंड किए हैं, या इस तरीके का कोई प्रोग्राम अटेंड किया है, या आपने कोई समर प्रोग्राम किया था जिसमें आपने क्लिनिकल साइड में कुछ काम किया, या प्रोडक्ट के बारे में आपने कोई शॉर्ट टर्म रिसर्च की थी पिछले 5-5.5 साल में। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा फार्मा कंपनी के एचआर मैनेजर के पास जाएगा, वो तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ भाई लड़का ठीक है। जैसे मानिए आपको जेनेटिक्स कंपनी में जाना है, आजकल कितनी कंपनियां हैं जो जर्म प्लाज्म में आई हैं, यूएस से हैं कई कंपनियां, तो उनके सामने बाकी सबकी ऐसे ही जाएगी सीवी। अगर आपकी सीवी जाती है जिसमें बीबीएससी एंड एच लिखा है और सेलिएंट अचीवमेंट में अगर आपने ये लिखा है कि भाई आपने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं एआई के ऊपर, या जर्म प्लाज्म सेंटर को आपने विजिट किया है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, तो अपने आप एक एज मिलेगा आपको बाकियों के मुकाबले। तो ये सब आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको आपके काम को, आपके सीवी को आपसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके फिर आपका चांसेस होगा कि भाई इस सीवी को अलग अलग करो और इंटरव्यू बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर आते हैं बाद में, जब एजुकेशन की बाद में बात आते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ या जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है, भाई हमारे पास 5.5 साल का समय कम होता है क्या कि हमने अभी तक कोई भी जो अपना इंटरेस्ट है, अगर हमारा फार्मा, मेडिसिन, गायनी या किसी भी चीजों में, या एनिमल न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, तो हमने कुछ तो किया होगा कभी। तो 4th ईयर में, 5th ईयर में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कीजिए आप लोग, जिसको कि आप प्रूव कर सके कि हाँ भाई हमने न्यूट्रिशन में हम इंटरेस्टेड है और न्यूट्रिशन में हमने काम किया है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोसी बेसिन में बाढ़ आती है और उधर मतलब जितना भी अफेक्टेड होता है, पूरा लाइफ स्टॉक आपका न्यूट्रिशन के लिए स्ट्रगल करता है। तो क्या आपने कुछ इनिशिएटिव लिया अपने गांव घर में, कुछ हे साइलेज या कुछ कंसंट्रेट या टीएमआर के ऊपर कुछ भी बनाया हो कॉस्ट? उससे ये नहीं है कि आपने कोई दुनिया बदल दी होगी, लेकिन आपकी जेन्युइन अप्रोच, आपका सिंसियरिटी, आपकी कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ ये काबिल आदमी है और इसको हम लेंगे तो हमारा काम अच्छे से करेगा कंपनी। क्योंकि कंपनी आपका नाम, आपका धर्म, आपका क्षेत्र, आपका जाति देख के जॉब नहीं देती है, वो ये देती है कि ये बंदा जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं ये कैपेबल है या नहीं है। क्योंकि आप बाकी चीजों से आपको पहली नौकरी मिल जाएगी या नौकरी बचाने में कारगर होंगे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको काबिल बनना बहुत जरूरी है, और काबिल बनने का एक बहुत अच्छा समय है। अगर आप लोग 4th ईयर में हैं, आपको अभी अगले 1-1.5 साल है, उसमें आप अपने आप को फोकस कीजिए। और एक चीज और जो मुझे लगता है कि हम लोग एक सीवी में थोड़ा सा अन्याय करते हैं कि हम लोग सीवी को चेंज नहीं करते हैं। जैसे अभी आज आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तो कम से कम आप एक बार अपने सीवी को आज रिव्यू कीजिएगा। मेरे ख्याल से 2 मिनट बाकी रह गए हैं इसमें, तो दूसरे वाले कंपोनेंट को इसके बाद करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस फ्लो में हम चल रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये नया सेशन प्लान कर लेंगे डॉक्टर जी कभी, तो 5 मिनट का सब ब्रेक भी ले लेंगे, और तब तक इनविटेशन आ जाएगा सबको, और वी कैन रीज्वाइन आफ्टर से कोई भी टाइम दे दीजिए, 4:07 पे दे दीजिए या 4:10 पे कर लीजिए, तो यू कैन सेंड द इनविटेशन। अजीत, डॉक्टर अजीत अभी आपका माइक्रोफोन अजीत ऑफ है, आपका माइक्रोफोन ऑफ है अजीत। डॉक्टर अजीत माइक्रोफोन, हाँ यस सर 4:45 में 4:45। हाँ ठीक है, आप जैसे ही आप ऑन कर देंगे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। 2-3 मिनट ज्वाइन करने में लगेगा सबको। ओके तो विल कम बैक। ओके ओके सो दैट शुड बी फाइन।